we will be discussing today about the performance considerations, DACs and ADCs, and what are they. As we have seen in last part that to get an analog output, a more sort of analog output from DAC, we need to reduce the step size. And to reduce step size, either we need to increase the number of bits or we have to reduce reference voltage. So before going to the issues associated with ADCs, let's take a review on these two issues regarding the DACs. Okay, so what we actually want is that whenever we are trying to convert a digital signal into an analog one, we want that the signal should have a reduced step size. Now step size reduction means that our signal would be more linear. And what's the problem with increasing number of bits? Number of bits, as you might already aware, let's say we got 4-bit input. That means we have 2 raised to power 4, 16 possible combinations. Okay, so 16 possible combinations mean that we can represent a certain level of voltage in 16 possible steps. It means that if we have like 16 volts reference volt, we will be having a 1 volt step size. We cannot increase the voltage in 0.5 volts increments. We can increase it only in 1 volt increment. But on the other hand, if we somehow have increased this number of bits, for example, we raise the number of bits to 10 bits, then we are available with I guess 1024 possible combinations. Means that now we can reduce our step size and increase the voltage in much smaller increments as compared to the previous one. So, but there is a cost. The cost is increased number of bits mean you will be having more parallel lines coming to the DAC, and there will be more resistance. R2R network will be involved. Not a big deal, because resistors are cheap. Okay, resistors cheap and we can use them as many as we want, and since we are using only R and 2R, so we will not be out of the we will never be out of the resistor values. Means that we will need only 10 kilo ohm resistors and 20 kilo ohm resistors, lots of 10 kilo ohm resistors, lots of 20 kilo ohm resistors. This thing will make more sense if you have studied the weighted binary weighted DACs. Binary weighted DACs जो होते हैं, they need to use a lot more combinations of resistors like R, 2R, 3R and so on. You may need to read it somewhere else. I will share the link in the description of a video that will guide you to the introduction of binary binary weighted DACs. So not a big deal here. क्या conclusion हुआ? The conclusion is that we can easily increase
number of bits for a DAC. Easily increase mean cost and complexity will be not that much of a problem. So that's why you can easily go for like you can download a file. You can say I choose to have a higher bitrate file, like you got 360 kbps music files available, and you also got 1 to 8 kbps music files available. And what will be your chosen file? You will most oftenly choose 360 kbps, so that you will get a more quality sound. क्वालिटी साउंड आपको कब मिलेगी? क्वालिटी साउंड आपको तब मिलेगी जब आपके पास जो DAC की आउटपुट है वो ज़्यादा लीनियर होगी, ठीक है। अज्यूमिंग दैट कि आप DAC को यूज़ कर रहे हैं टू कन्वर्ट डिजिटल मीडिया इनटू एन ऑडियो फाइल, जो कि आप स्पीकर को दे रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ज़्यादा DAC में आता है व्हेन इट कम्स टू रिड्यूसिंग द रेफरेंस वोल्टेज। रेफरेंस वोल्टेज क्यों प्रॉब्लम बन जाती है? रेफरेंस वोल्टेज इस तरह से प्रॉब्लम बन जाती है कि लेट्स से कि यू गॉट 4-bit digital out. 4-bit digital out means you have possible combinations of 16, ठीक है। तो अगर आप इसको देते हैं, आप कहते हैं कि आई हैव टू पुट V reference equal to 16 volts, then step size is 1 volt, and that's not a good conversion, because 1 volt step size is too much. आपको वो कभी भी नहीं लगेगा कि ये लीनियर, आपको वो लगेगा कि ये नॉन लीनियर सिग्नल ही है। लेकिन अगर आप रेफरेंस सिग्नल को 16 मिली वोल्ट्स कर देते हैं तो फिर आपके पास जो स्टेप साइज होगा वो बहुत छोटा 1 मिली वोल्ट का हो जाएगा। 1 मिली वोल्ट विल बी समथिंग जो कि आप इजीली कह सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, ओके इट्स फाइन, इट्स ऑलमोस्ट लीनियर। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये कि आपकी जो पीक वोल्टेज होगी सिग्नल की वो भी 16 मिली वोल्ट से ज़्यादा नहीं जाएगी। 16 मिली वोल्ट से सिग्नल की अगर पीक नहीं जाती तो उसका नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि लेट्स से कि आपके पास एक CD प्लेयर है और CD प्लेयर से आपने डिजिटल आउट लिया। ये आपके पास CD प्लेयर है, उसने डिजिटल आउट दिया, आपने सिर्फ 4 बिट का डिजिटल आउट लिया, ठीक है। अब 4 बिट का डिजिटल आउट लेने का मतलब है कि आपके पास अगर आप आउटपुट वोल्टेज बढ़ाते हैं तो आपके पास 1 वोल्ट का स्टेप साइज आएगा। अगर आप आउटपुट वोल्टेज 16 मिली वोल्ट तक रखते हैं तो आपके पास सिग्नल तो बड़ा रिफाइन आ जाएगा, यू विल गेट अ वेरी फाइन सिग्नल, लेकिन उसकी जो पीक वोल्टेज है वो 16 मिली वोल्ट से ज़्यादा नहीं जाएगी। मीन्स दैट कि दिस वुड बी सफिशेंटली गुड कि आप इस DAC को लगाएं यहाँ पे, ठीक है। DAC के आउटपुट जो है वो आप अपने हेडफोन्स को दे दें, ठीक है। हेडफोन्स के लिए इट वुड बी परफेक्टली फाइन, बिकॉज हेडफोन्स जो है वो बहुत ज़्यादा वोल्टेज नहीं ले रहे होते, आप आराम से एक अच्छी क्वालिटी का म्यूज़िक जो है वो सुन सकते हैं। लेकिन अगर आप सेम इसी चीज़ को कनेक्ट करेंगे बड़े साइज़ के स्पीकर्स के साथ, तो बड़े साइज़ के स्पीकर्स आपको कहेंगे कि गिव देम मोर वोल्टेज। वोल्टेज बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको V रेफरेंस यहाँ से इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। जैसे ही आप V रेफरेंस इंक्रीज करेंगे तो आपके पास जो है स्टेप साइज वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। स्टेप साइज बढ़ने से क्या होगा? जो सिग्नल स्पीकर को जा रहा है वो अब लीनियर नहीं रहेगा, बल्कि वो नॉन लीनियर स्टेप वाइज सिग्नल जाना शुरू हो जाएगा। और रिजल्ट क्या होगा? पुअर साउंड क्वालिटी, ठीक है। पुअर साउंड क्वालिटी आपको मिलेगी। दैट्स द इशू। Okay, now here we can easily resolve this issue by lowering V reference to 16 millivolt and putting an amplifier here, ठीक है। एम्पलीफायर करने से क्या होगा कि एक मतलब हमने लीनियर आउटपुट अचीव कर ली, लीनियर आउटपुट को हम एम्पलीफाई करेंगे तो वो भी हमारे पास लीनियर आउटपुट ही होगी। लेकिन दरमियान में हमें यहाँ पे कुछ फिल्टर्स लगाने पड़ सकते हैं ताकि वो नॉन लीनियरिटी को एलिमिनेट करें।
एक वे अराउंड तो ये हो गया, लेकिन देयर इज स्टिल अनदर इशू, दैट इशू इज 16 मिली वोल्ट सिग्नल जो कि आप एम्पलीफायर को दे रहे होंगे वो इटसेल्फ काफ़ी स्मॉल सिग्नल होगा, बहुत स्मॉल। और कोई नॉइज सोर्स यहाँ पे अगर पाया जाता है तो नॉइज सोर्स कैन इजीली इंटरफेयर अ नॉइज सिग्नल विच इज वे मोर देन योर ओरिजिनल सिग्नल। तो दैट मीन्स कि आपके पास नॉइज इम्यूनिटी जो है ना सिस्टम की वो रिड्यूस हो रही है। अब अगर आपने नॉइज इम्यूनिटी इंप्रूव करनी है तो आपको रेजोल्यूशन यानी कि साउंड क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, स्टेप साइज, या फिर अगर आप स्टेप साइज भी कम करना चाहते हैं और नंबर ऑफ बिट्स भी नहीं बढ़ाना चाहते तो फिर आपको नॉइज इम्यूनिटी ज़्यादा देनी पड़ेगी, सिस्टम को ज़्यादा पैक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इश्यूज हो गए, लेकिन फिर भी आपको उतनी अच्छी साउंड क्वालिटी कभी भी नहीं मिलेगी जितने कि आपको नंबर ऑफ बिट्स बढ़ाने से, लाइक 16 बिट पे आपको ज़्यादा अच्छी साउंड क्वालिटी मिलेगी, 32 बिट पे आपको और भी ज़्यादा अच्छी साउंड क्वालिटी मिलेगी, because now the output will have more levels to represent the sound. like यहाँ पे आपके पास तो सिर्फ 16 लेवल है, एक लोअर हल्की साउंड और ऊंची आवाज़, नीची आवाज़, धीमी आवाज़ और ऊंची आवाज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपके पास सिर्फ 16 लेवल्स अवेलेबल होंगे। जबकि अगर आपके पास 16 बिट है तो यू विल हैव 2⁻16, आई गेस दैट वुड बी 1280, I'm not sure, no, that would be much more. And if you got 32 bit, 2⁻32 bit, then आपके पास बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस यहाँ पे स्टेप्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप बड़े आराम से एक अच्छी क्वालिटी की साउंड भी ले सकते हैं, गुड क्वालिटी साउंड, ठीक है। और आप अपने रेफरेंस वोल्टेज को भी मिली वोल्ट्स में या 16 वोल्ट्स तो नहीं, लेकिन फिर भी आप इसको लेट से कोई 5 वोल्ट्स तक इंक्रीज कर सकेंगे ताकि आप नॉइज़ इम्यूनिटी या नॉइज़ आइसोलेशन जो है वो आप अच्छी अचीव इस चीज़ में कर सकें। तो ये तो थोड़ी बात हो गई DAC के हवाले से। अच्छा, ADC की अगर हम बात करते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की, तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में यही चीज़ जो है, स्टेप साइज जो है, ये उसकी रेजोल्यूशन को डिफाइन करना शुरू कर देता है। रेजोल्यूशन को डिफाइन करना शुरू कर देता है, यानी कि लेट्स से कि आपके पास इनपुट सिग्नल आ रहा है, ठीक है, ये देते हैं आप ADC को, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को, और वो उसको कितने बिट्स की आउटपुट में रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, वही बात कि अगर आपके पास यहाँ पे एक सिग्नल आ रहा है जिसकी पीक है 16 वोल्ट्स और आपके पास एक ADC लगा हुआ है जो कि 4 बिट आउटपुट दे रहा है, तो आपके पास वो इसको डिफ्रेंशिएट करेगा ओनली 0, 1, 2, 3, 1 वोल्ट्स के स्टेप साइज में इसको डिफ्रेंशिएट करके देगा। मीन्स दैट व्हेन द इनपुट वोल्टेज इज 0 यू विल बी गेटिंग 0, 0, 0, 0। व्हेन द इनपुट वोल्टेज इज 0.5 इंक्रीज हो गई, 0.25 वोल्ट्स हो गई, आपको स्टिल 0 ही मिलेंगे। इट इंक्रीज टू 0.5 वोल्ट्स, आपको स्टिल 0 मिलेंगे। इंक्रीज टू 0.75 वोल्ट्स, स्टिल आपको 0 मिलेंगे। जब ये इंक्रीज करेगी टूवर्ड्स 1.0 वोल्ट्स, तब जाके आपको यहाँ पे 1000 मिलेगा, अज्यूमिंग दैट इट्स LSB एंड दिस इज MSB। ठीक है, और इसी तरीके से 1.1 वोल्ट से लेके 1.25 वोल्ट्स हो या 1.5 वोल्ट्स हो या फिर 1.95 वोल्ट्स हो, आपको 2.0 वोल्ट्स पे जाके नाउ यू विल बी गेटिंग 0100। मीन्स दैट द सेंसिटिविटी ऑफ ADC, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, इज पुअर। इट कैन नॉट सेंस माइनर चेंजेस, मतलब 0.25 का चेंज हो जाए, 0.5 वोल्ट्स का चेंज हो जाए, 0.75 वोल्ट्स का चेंज आ जाए इनपुट में, it will not change its output. It will change its output only when there is a 1 volt change. So इसकी sensitivity जो है वो poor है। On the other hand, अगर आप let's say के input voltage को कम कर देते हैं, 16 volts के बजाय 16 मिली वोल्ट्स कर देते हैं, तो अब आपके पास ये सारी चीज़ जो है ये
मिली वोल्ट्स में आ जाएगी और अब आपके पास इसकी सेंसिटिविटी कितनी होगी 1 मिली वोल्ट। तो अगेन वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज कम कर दी, मतलब आपके पास मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज जो रेंज है जिसमें आपके पास एनालॉग इनपुट आ रही है वो पहले 0 to 16 वोल्ट थी, तो उसको हमने कम करके 0 to 16 मिली वोल्ट कर दिया, तो आपके पास रेजोल्यूशन जो है वो इम्प्रूव होगी। अब ये 1 मिली वोल्ट के चेंज को भी सेंस कर सकता है। या दूसरा तरीका आपके पास क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप नंबर ऑफ बिट्स जो हैं वो बढ़ा दें। ये 4 बिट्स के बजाय आप इसको 8 बिट कर दें या आप इसको 16 बिट कर दें, तो उस तरीके से भी आप रेजोल्यूशन इसकी इम्प्रूव कर सकते हैं। और रेजोल्यूशन इसकी मालूम करने का तरीकाकार फार्मूला वही है, यानी कि आपके पास टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय 2⁻n, n इज नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है। और ये जो वोल्टेज है ये क्या है, रेंज है इनपुट वोल्टेज की, जो एनालॉग इनपुट आ रही है उसकी रेंज है कि वो कितनी रेंज में चेंज हो रहा है। रेंज में क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज इट कैन बी 0 to लेट्स से जिस तरह अभी हमने बात की 0 to 16 मिली वोल्ट्स हो सकता है, और इट कुड बी -8 मिली वोल्ट्स टू 8 मिली वोल्ट्स हो सकता है, ठीक है। और इट कुड बी 16 मिली वोल्ट्स टू 32 मिली वोल्ट्स हो सकता है। मतलब क्या है, लेकिन आपके पास इनपुट सिग्नल आ रहा है, वो इनपुट सिग्नल लाजमी तो नहीं है कि वो 0 से 16 के दरमियान में चेंज हो रहा हो। ये भी तो हो सकता है कि वो, देखिए आपके पास पहला सिनेरियो क्या है कि 0 to 16 चेंज हो रहा है, ठीक है, ये 16 है आपके पास। दूसरा सिनेरियो क्या है कि नहीं वो 0 to 16 नहीं चेंज हो रहा है, बल्कि वो इस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, +8 -8, ठीक है। या फिर तीसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि आपके पास जो इनपुट वोल्टेज है वो चेंज हो रही है जस्ट बिटवीन, ये आपके पास लेट्स से कि 16 मिली वोल्ट्स है, ठीक है, और ये 16 मिली वोल्ट से 32 मिली वोल्ट्स के दरमियान में वेरी कर रहा है। तो इन ऑल दी सिनेरियोज आपके पास जो रेंज बन रही है वो रेंज कितनी है, 16 मिली वोल्ट्स टोटल सिग्नल में वेरिएशन। दिस वेरिएशन डिवाइडेड बाय 2⁻n will give you the resolution of your ADC, ठीक है। तो ADC की रेजोल्यूशन भी उसी तरीके से कैलकुलेट हो रही है ऑलमोस्ट जिस तरह से DAC की हो रही है। तो अब अगर हम अच्छी रेजोल्यूशन लेना चाह रहे हैं, अच्छी रेजोल्यूशन, या फिर हम रिड्यूस्ड स्टेप साइज लेना चाह रहे हैं, तो हमारे पास दो ऑप्शंस थे। दो ऑप्शंस क्या थे कि या तो हम रेफरेंस वोल्टेज को रिड्यूस कर दें, इस केस में हमारे पास क्या है कि हम वोल्टेज की रेंज को रिड्यूस कर दें, ठीक है, वोल्टेज रेंज को हम रिड्यूस कर दें। और दूसरी चीज़ क्या थी कि नंबर ऑफ बिट्स को इंक्रीज कर दें, ठीक है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि रेफरेंस वोल्टेज को फिलहाल हम थोड़ा साइड पे कर देते हैं, क्योंकि ये आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि रेफरेंस वोल्टेज का जो चेंज है दैट हैज़ मोर टू डू विद द इनपुट एंड आउटपुट लेवल्स एट्सेट्रा। हम ज़्यादा नंबर ऑफ बिट्स पर फोकस करते हैं इस मौके पे, ठीक है। तो अगर हम नंबर ऑफ बिट्स की बात करते हैं तो R2R नेटवर्क में तो नंबर ऑफ बिट्स इंक्रीज करना, यानी कि जब आप बना रहे हैं DAC में नंबर ऑफ बिट्स इंक्रीज करना कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। क्यों मुश्किल काम नहीं है, व्हाट यू नीड 2R, here you got R, ठीक है, 2R आ गया आपके पास, R आ गया, 2R आ गया, R आ गया, another 2R and R, ठीक है। तो आपके पास ये था 4 बिट, इसको पहले को तो ग्राउंड करते हैं, आपके पास 4 बिट थी, 4 बिट DAC बना हुआ है आपके पास। अगर आपने इसको इंक्रीज करना है 6 बिट पे लेके जाना है, तो ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट ऐड another 2R and another R, ठीक है। ये आपके पास एक बिट पे और बढ़ गया, एक और 2R लगाए, एक और R लगाए, तो आपके पास एक और बिट बढ़ गया,
and you can easily increase the number of bits by just adding some resistors, and resistors are cheap. cheap किस तरह से हैं? in all cases कॉस्ट के हिसाब से, कॉस्ट यानी कि मनी, इसके अलावा एरिया, एरिया मीन्स रेजिस्टर्स जो हैं वो कितनी जगह लेते हैं सर्किट के ऊपर। जब आप कॉम्पैक्ट सर्किट्स बनाने की बात करते हैं तो कितनी जगह लेते हैं, तो एरिया भी इनका स्मॉल होता है, स्मॉल एरिया लेते हैं, लेस कॉस्ट लेते हैं, इतने महंगे नहीं होते, एंड दे आल्सो हैव सिलिकॉन कंजम्पशन भी इनकी कम होती है। चलें इस पे बाद में हम जाएंगे सिलिकॉन एरिया की बात पे। तो एरिया और कॉम्प्लेक्सिटी की भी बात करते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी भी सर्किट की जो है वो कोई ख़ास इंक्रीज नहीं हो रही है, आपका डिज़ाइन ऑलमोस्ट सेम जा रहा है, ठीक है। तो डीएसी में तो आप बड़े आराम से नंबर ऑफ बिट्स इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन एडीसी में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते एडीसी में? तो ज़रा देखते हैं कि एडीसी में क्या प्रॉब्लम आता है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एडीसी